Hello students, we have studied the biomolecules in the cell, that is the third proteins. Okay, now we have seen the characters of protein. So what is the protein? The term protein is to explain the complex organic nitrogenous based substances found in cell of all animals and plants. Okay, now proteins, it is made up of large molecules containing amino acids. Okay, now amino acids are linked together by peptide bonds which join the carboxyl group of one amino acid residue to amino group of another residue. One or more polypeptide chains forms proteins. Okay, now all 20 naturally occurring amino proteins or some of them can form proteins. Then we have seen the various structures of the proteins, that is the primary structure of protein, which is a linear sequence of amino acid. Then secondary structure of protein, which is a which have bend or fold or coiling is there. Okay, the alpha helix beta proteins we have seen. Then tertiary structure of proteins we have seen that peptide chains are much looped, twist and folded back on themselves due to formation of disulfide bonds. Then quaternary structure is also there, which we see in the hemoglobin protein subunits forms quaternary structure. Then we have seen basic proteins and acidic proteins. A protein consists of more basic amino acids are called basic proteins. The protein rich in acidic amino acids are called acidic proteins. Now classification of proteins on the basis of structure. What is the structure of protein? उसके बेस पर क्लासिफिकेशन किया है प्रोटीन्स का. नाउ फर्स्ट इज द type of proteins. Now there are three types of proteins, that is the simple proteins, conjugated proteins and derived proteins. Three types are there on the basis of structure. उसका structure कैसा है उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, that is the simple protein, conjugated protein and derived protein. सबसे पहले नाउ सिंपल प्रोटीन्स. सिंपल प्रोटीन्स के कैरेक्टर्स क्या है? ऑन द हाइड्रोलिसिस इट्स ओनली अमीनो एसिड्स. ओके, जब उस सिंपल प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस होता है तो उसके बाद में क्या होते हैं? सिर्फ अमीनो एसिड्स ही निकलते हैं और कुछ भी नहीं निकलता है. ओके, हाइड्रोलिसिस म्हणजे क्या? उसके जो हाइड्रोजन एटम है या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलता है और उससे क्या, सिर्फ हमें अमीनो एसिड्स ही मिलते हैं. नाउ this simple protein, these are soluble in one or more solvents, may be soluble in water. तो वन और मोर सॉल्वेंट्स में ये सिंपल प्रोटीन है, ये सोल्यूबल रहते हैं और वाटर में भी सोल्यूबल रहते हैं. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इट इज दैट द ग्लोबुलर प्रोटीन्स ऑफ हिस्टोन्स. ओके, जो हिस्टोन के ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, हिस्टोन प्रोटीन्स हमें कहाँ मिलते हैं? दैट इज इन द डीएनए. ओके, डीएनए इट इज कॉइल्ड अराउंड द हिस्टोन्स. तो ये हिस्टोन्स के जो ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स है, ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन्स है, दे आर नॉट कोएगुलेटेड बाय हीट. अगर हम इसको हीट देंगे, इस हिस्टोन को अगर हम हीट देंगे, उसमें के जो ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे? कोएगुलेटेड, नॉट कोएगुलेटेड. नॉट कोएगुलेटेड मीन्स क्लम्स नहीं तैयार होंगे उसके. क्लम्स मीन्स ज्याला आपण मराठीत म्हणतो गोठणे. ओके, तो ऐसे वो क्लम्स तैयार नहीं होंगे हिस्टोन्स के. ओके, देन नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोटीन इट इज द अल्ब्यूमिन्स. नाउ अल्ब्यूमिन्स आर द सिंपल प्रोटीन्स. क्या है? ये सिंपल प्रोटीन्स है. अगर उसको हीट दी हमने तो क्या होगा? कोएगुलेटेड ऑन हीटिंग, तो उसके जो क्लम्स है वो तैयार होंगे. मतलब ऐसे गोठणे ज्याला म्हणतो आपण वैसे तैयार होंगे ऑन द अल्ब्यूमिन्स. Now albumins are the simple proteins coagulated on heating. Then examples of simple proteins is the histones of nucleoprotein. nucleoprotein के जो histones है they are the simple proteins. Then egg albumin. egg albumin म्हणजे means white of the egg. वो क्या है? It is the egg albumin. It is a protein, simple protein. Then serum protein. Okay, serum means blood protein. Okay,
तो सीरम मीन्स ब्लड, ओके, ब्लड में जो प्रोटीन है वो भी अल्ब्यूमिन है, दैट इज द सिंपल प्रोटीन है। देन लेग्यूमिलिन ऑफ पल्सेस आर अल्ब्यूमिन्स, ओके, जो लेग्यूमिलिन होता है पल्सेस में, पल्सेस मीन्स डाई, तो इस पल्सेस में जो लेग्यूमिलिन है वो भी क्या है, अल्ब्यूमिन है, दैट इज द सिंपल प्रोटीन है वो, ओके। नाउ दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द simple proteins. Then next type, that is the conjugated protein. Now what is meant by the conjugated protein? The simple protein united with some non protein substances. जो simple protein है जो unite हो गए हैं non protein substance के साथ, then they are called as a conjugated protein, okay. Now the non protein group is called prosthetic group. अब जो non protein group है उसे क्या कहा जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, वी ऑल नो द हीमोग्लोबिन विच इज फाउंड इन द ब्लड, ओके। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये एग्जाम्पल है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का, ओके। नाउ दिस हीमोग्लोबिन मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन एंड हिम मीन्स प्रोस्थेटिक ग्रुप, मतलब कि ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, और हीम क्या है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। प्रोस्थेटिक ग्रुप है मतलब कि क्या, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है, ओके। नाउ इस दोनों मिलके क्या तैयार हो गया है, हीमोग्लोबिन तैयार हो गया है, दैट इज द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। नाउ न्यूक्लियोप्रोटीन हैव न्यूक्लिक एसिड्स एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, जो न्यूक्लियस में पाए जाते प्रोटीन है, नाउ हैव द न्यूक्लिक एसिड एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो उनमें का जो न्यूक्लिक एसिड रहता है दे आर एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप रहते हैं। ऑन द बेसिस प्रोटीन आर क्लासिफाइड एज ग्लाइकोप्रोटीन्स, म्यूकोप्रोटीन्स एंड द लिपोप्रोटीन, ओके। ऑन द बेसिस, ऑन दिस बेसिस मतलब इस बेसिस पर क्या किया गया है, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है प्रोटीन्स का, इस बेसिस पर कि कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप है उसके उस पर इसका क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया। ऑन दिस बेसिस प्रोटीन आर क्लासिफाइड एज अ ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन। देन म्यूकोप्रोटीन मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, ओके। प्रोटीन के साथ क्या मिल गया है, कार्बोहाइड्रेट मिल गया है, देन उसके साथ क्या है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है। लिपोप्रोटीन हम किसे कहेंगे ना, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ लिपिड जब ऐड होता है देन इट इज कॉल्ड एज अ लिपोप्रोटीन। Now this is the lipoprotein, glycoproteins, mucoproteins and lipoprotein. Now examples of the conjugated proteins is the mucoprotein. Mucoprotein means mucin, that is the saliva. जो सलाइवा में जो पाया जाता है that is the mucin, उसमें जो पाया जाता है that is the mucoprotein. Then next it is the heparin, that is the blood. ये heparin है, ये blood में पाया जाता है। Then लिपोप्रोटीन फाउंड इन ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मिल्क। जो लिपोप्रोटीन है वो कहाँ पे पाया जाता है, दैट इज इन द ब्रेन में पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मिल्क etc. देन नेक्स्ट टाइप दैट इज द डिराइव्ड, ओके। नाउ डिराइव्ड में what is mean by the derived proteins? Now not found in nature as such but are derived from native proteins molecules on hydrolysis, okay. जब नेटिव प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस होता है उसके बाद में जो प्रोटीन्स तैयार होते हैं दे आर कॉल्ड एज अ डिराइव्ड प्रोटीन्स, ओके। तो ये नेचुरली हमें ऑकर नहीं दिखते हैं कौन से भी सेल में ना, जब उनका हाइड्रोलिसिस होगा तभी ये प्रोटीन्स, ये डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या होंगे, तैयार होंगे, ओके। नेचुरली हमें ऐसे डिराइव्ड प्रोटीन नहीं मिलते, सिर्फ कब मिलते हैं, जब प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस के बाद ही हमें derived proteins मिलते हैं। Now example of the derived proteins, it is the metaproteins and the peptones, okay। तो derived protein के examples है that is the metaproteins and the peptones, okay। तो ये now these are the classification of the proteins on the basis of the structure, that is the type of proteins are simple protein, conjugated protein and derived protein, okay। अब उसके कैरेक्टर्स क्या है, सिंपल प्रोटीन हम किसे कहेंगे कि जो सिर्फ हाइड्रोलिसिस के बाद सिर्फ क्या देंगे, अमीनो एसिड्स देंगे, उसके साथ कौन सा भी ग्रुप अटैच नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एज अ सिंपल प्रोटीन।
ओके। अब ये जो सिंपल प्रोटीन है ये सोलूबल है वन और मोर सॉल्वेंट्स में भी और वाटर में भी। नाउ जो हिस्टोन के ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स है दे हीट करने के बाद वो कोएगुलेट नहीं करते। कोएगुलेट नहीं करते मतलब कि क्या, उनके क्लम्प्स नहीं तैयार होते। जबकि जो अल्ब्यूमिन्स है, ओके, अल्ब्यूमिन्स आर द सिंपल प्रोटीन। तो सिंपल प्रोटीन को अगर हम अल्ब्यूमिन्स को अगर हम क्या करेंगे, हिट करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि वो कोएगुलेट करेंगे, मतलब कि उसके क्लम्प्स तैयार होंगे या फिर ज्याला आपण म्हणतो गाठी तैयार होणे, ओके। तो ऐसे गोठणे ज्याला म्हणतो, तो ऐसे उसमें तैयार होंगे। देन एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल प्रोटीन आर द हिस्टोन्स ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन में के जो हिस्टोन्स रहते हैं इज एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल प्रोटीन। देन एग अल्ब्यूमिन जो व्हाइट मैटर रहता है एग का, इट इज द एग अल्ब्यूमिन। देन सीरम दैट इज द ब्लड अल्ब्यूमिन। ब्लड में का जो प्रोटीन है उसे सीरम अल्ब्यूमिन। देन पल्सेस में की जो प्रोटीन है दैट इज द लेग्यूमिलिन, इट आर द अल्ब्यूमिन्स, दैट इज द सिंपल प्रोटीन्स इज देयर। देन नेक्स्ट टाइप है दैट इज द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को किसे कहेंगे हम, जब सिंपल प्रोटीन के साथ क्या होगा, सम नॉन प्रोटीन ग्रुप अटैच होता है, उसे हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। नाउ अब ये जो नॉन प्रोटीन ग्रुप को क्या कहेंगे हम, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे, ओके। अब जैसे कि एग्जांपल रहा हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में हम ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, हिम है, इट इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब न्यूक्लियोप्रोटीन में भी क्या है कि एक न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ओके। अब ऑन दिस बेसिस, इस बेसिस पर क्या प्रोटीन क्लासिफाइड किए गए हैं इनटू ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन। मतलब म्यूकोप्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, एंड लिपोप्रोटीन मीन्स लिपिड प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। देन इसके एग्जाम्पल दैट इज द म्यूकोप्रोटीन, म्यूसिन, सलाइवा, हिपेरिन जो ब्लड में हवाया जाता है, लिपोप्रोटीन फाउंड इन ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मिल्क, इटीसी। नॉट फाउंड इन नेचर एज सच बट एज डिराइव फ्रॉम द। अब डिराइव प्रोटीन किसे कहेंगे हम, जो क्या है नेचुरली नहीं फाउंड होते, सिर्फ हाइड्रोलिसिस, प्रोटीन का जब हाइड्रोलिसिस होगा उसके बाद में जो तैयार होंगे दैट इज द डिराइव्ड प्रोटीन, ओके। नाउ एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड प्रोटीन, इट इज द मेटाप्रोटीन्स एंड द पेप्टोन्स, okay। Now this is the classification of the proteins. Now we have completed biomolecules in cell, that is the proteins, okay। तो हमने तीन जो बायोमोलिक्यूल्स है कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट इट इज द कार्बोहाइड्रेट, देन सेकेंड इट इज द लिपिड्स, एंड थर्ड इट इज द प्रोटीन्स। तो हमारे तीन जो बायोमोलिक्यूल्स है इन द सेल वो कंप्लीट हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमें देखने हैं दैट इज द न्यूक्लिक एसिड्स। जो न्यूक्लिक एसिड्स है दे आर ऑल्सो what are they are also biomolecules in the cell. नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड, व्हाट इज मीन बाय द न्यूक्लिक एसिड, ओके। थैंक यू।